Hi Tarun ji. Hi Swapnil ji. Hi Rahul ji. Hi Harsh. Hi Ayushi ji. Hi Priyanka ji. Hi Shubham. Good evening everyone. Hi Anuradha. So today we have a third series of our Insta Live, and today we have architect Shashank Shirsagar. He'll be joining us within a few minutes. Hi everyone. Good evening everyone. I am Pawan Laudi, founder and director of Stone World, and on behalf of Team Stone World, I welcome you all to our Insta Live series, The Design Talk. Stone World owns the Central India's biggest showroom of natural stone, where all the products related to walls, floors, and ceilings are displayed live. We work on the concepts which can be customized as per the theme, design, and liking of the architect and end users. Customization is of any product is the key for us. And with an experience of over more than 18 years and dedicated creative team, we are keen to serve you and innovate and create something new in natural stones. I'm pretty excited to share that we have launched the Design Talk, an Instagram series aimed to bring new ideas, inspiration, design process, thought process, and solutions from renowned architects, interior designers, and landscapers of India.
On the third live session of this series, today we have with us a renowned landscape designer from Indore, Shashank Shirsagar sir, founder and director of Devila Landscape, who has designed many prestigious projects pan-India, ranging from townships to corporate houses, hotels, resorts, farmhouses, villas, and government projects. Shashank sir has done MSc in horticulture and has done thesis in horticulture also. And after that, he started Devila Landscape in 1999 with a vision of connecting people with nature. And it's been 23 years now in the industry. Some of his projects includes Pakija Lifestyle, Infobeans, Chokidhani, Pune, Rotaries of Sendhwa, Nakshatra Garden in the Bhind, etc. And I'm feeling proud to share that our showroom, which was started in 2019, was also designed by Shashank sir. So welcome you, sir. Thank you, Pawan. How are you? I'm good, sir. I'm good. How are you, sir? Fine, absolutely fine. Yeah, Pawan. So, sir, we'll start with. I'll put my first question. सर जब आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, व्हाट्स योर डिजाइन फिलोसफी बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट एंड इज देयर एनीथिंग यू स्पेशली लुक फॉर एनी इंस्पिरेशन? सर वो हम जानना चाहते हैं. श्योर. फॉर डिजाइनिंग एक्चुअली हम लोग सारे क्लाइंट्स के इनपुट्स लेते हैं. क्लाइंट्स की लाइफस्टाइल को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी फैमिली को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं. अगर वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है और अगर कोई होटल या रिजॉर्ट्स के कोई प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें ओवरऑल कितनी एमिनिटीज आने वाली है और उनको कितने लोगों को कैटर करने की उनमें कैपेसिटी और वो एरिया कितना अलाउ करता है. तो पहले हम लोग इनवर्स चलते हैं कि उनके व्यूज क्या है, वो क्या चाहते हैं. देन वी नोट डाउन इन ए पेपर. उसके बाद में हम उसको टिक करते जाते हैं और आर्किटेक्चरल स्टाइल कौन सा, जैसे कंटेम्प्ररी किसी को पसंद है, किसी को ट्रेडिशनल पसंद है. ट्रेडिशनल में भी किसी को स्पेनिश में जाना है या अपने क्या बोलते हैं मोरक्कन स्टाइल में जाना है. तो हम लोग पहले वो सारी चीज प्लान करते हैं, डिफाइन करते हैं, एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं. कॉन्सेप्ट बनाने के बाद एक फर्स्ट स्टेज पे हम लोग क्लाइंट्स को हमारे व्यूज, थॉट्स, आइडियाज देते हैं. फिर उसमें वो उनके आइडियाज के साथ आते हैं. फिर हम लोग उसकी वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स भी देखते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कि वेदर इट इज फिजिबल और नॉट. तो उसके लिए 25% फीडबैक हम देते हैं, 75% कम्स फ्रॉम द पर्टिकुलर पर्सन जो हमसे प्लान कराना चाह रहा है. ऐसे ही हम लोगों का रेसिडेंस का भी होता है कि उनके आगे छोटा बच्चा है या बुजुर्ग है तो उनके सारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके रिस्पेक्टिव उसमें सॉल्व हो अलोंग विद देयर बजट बेसिकली. एंड प्लीज सर, तो अगर मैं आपसे बात करूं सर, आपने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें रेंजिंग फ्रॉम टाउनशिप्स है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी आपने काफी किए हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं. अगर मैं कोई पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट की बात करूं जो आपके दिल के सबसे करीब है तो वो क्या होगा सर? विच इज योर फेवरेट लैंडस्केप प्रोजेक्ट सर? Points depend on some अलग. अगर if I will go for this government projects तो नक्षत्र वाटिका हम लोगों ने भिंड में किया था, उससे हमने बहुत अच्छा मिला. सेकेंडली हम लोगों ने पूरा सिंहस्थ जो गया है उसका पूरा लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स के पूरे प्लांटेशंस की डिटेल करी. इंस्टीट्यूशंस में सेज यूनिवर्सिटी, इफ यू हैव हर्ड द नेम, उसका बहुत अच्छा आउटकम है. रेसिडेंशियल में मिस्टर संजय अग्रवाल फ्रॉम इंदौर, उनका हम लोगों ने किया है. उसके बाद टेरेस में मिस्टर विनय छजलानी, उनका हम लोगों ने टेरेस 2 ईयर अबाउट जब आपकी ओल्ड शॉप थी तभी हम लोगों ने किया था. नाउ इट इज ट्रेंडिंग नंबर 1 इन इंटरनेशनल लैंडस्केपिंग प्लेटफॉर्म सिंस लास्ट 8 years. वाओ, सुपर्ब सर, सुपर्ब. थैंक यू. ऐसा क्या स्पेशल था सर, मतलब जैसे आपने विनय छजलानी जी की जब काम किया था, जो टेरेस डिजाइन किया था, तो क्या चीज थी सर जो क्लिक करी है, या क्या चीज थी जो आज भी इतना अट्रैक्ट करती है लोगों को? एक्चुअली वी आर वेरी उसमें हम लोगों को स्पेस जो अलॉटेड थी लैंडस्केपिंग में वो बहुत छोटी थी और उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हायर थी. Say it was 20 feet by 8 feet, something like that. And they want many things inside. They want water body also. They want Buddha also. They want covered also. They want many plants also. तो वो that was challenge for us. और जब हम लोगों ने छोटी छोटी चीज को, उसमें वाटर प्रूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था और फिर वो टेरेस पे बनना था तो नीचे से दिखे नहीं, ऐसे बहुत सारे कंस्टेंट्स थे. तो वी प्लान्ड इट एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट्स कम अल्टीमेटली. Yes sir, I have seen that. It's really a beautiful terrace which you have designed. मजा आया सर उसको देख के. आपका टेरेस भी हमने डिजाइन किया है सर. सर जब हम लैंडस्केप की बात करते हैं तो दो वर्ड काफी इसमें कॉमन चलते हैं, एक तो होता है हार्डस्केप और एक होता है सॉफ्टस्केप. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स, हार्डस्केप एंड सॉफ्टस्केप?
और जब भी आप कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं सर, हाउ डू यू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन हार्डस्केप एंड सॉफ्टस्केप? देखिए, एक थोड़ा मोटे मोटी भाषा में हम लोग बोलें तो जो हार्डस्केप इज द एरिया विच इज यूज, जिसमें हम लोग स्टोन्स हैं, पेबल्स हैं, जो सारी चीजें कंज्यूम करते हैं, जहाँ पे प्लांट्स नहीं होता है बेसिकली। और सॉफ्ट स्केप वाला वो हो जाता है जहां पर कुछ भी चीज रिलेटेड टू सीमेंट स्टोन नहीं होती है। बेसिकली वहां पे सिर्फ प्लांट्स हैं, लॉन है, और इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, ट्रीज हैं, श्रब्स हैं। देयर इज नो स्टोन एलिमेंट्स रिलेटेड विथ। बट ए लैंडस्केप, सिर्फ लैंडस्केप जो हार्डस्केप है वो लैंडस्केप नहीं हो सकता। सिर्फ सॉफ्टस्केप हम लोग करेंगे, उसमें भी जैसे पैशियो चाहिए। अब हम लोगों ने सॉफ्टस्केप करा है कहीं पे और वहां पर बैठने की जगह नहीं है। अगर बैठ तो आप लॉन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन बरसात में आप लोग अगर लॉन में बैठेंगे तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। तो हमको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। एंड अगेन इट इज ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट साइड कि उसको कितना एरिया यूटिलाइज करना है। बेसिकली रेसिडेंशियल गार्डन में इसका रेशियो 80-20 जाता है। 80% शुड बी सॉफ्टस्केप एंड 20-25% शुड बी लैंडस्केप। अगेन अगर हम लोग कॉलोनी की हम बात करें तो 90-10% का इसका रेशियो जाना चाहिए। बेसिकली 90% इट शुड बी सॉफ्टस्केप एंड 10% शुड बी हार्डस्केप। और टेरेसेस वगैरह में हम जाते हैं तो इट कैन बी 70-30 ऑल्सो। 70% कैन बी हार्डस्केप, 20% और 30% कैन बी सॉफ्टस्केप, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका टेरेस है। उसमें सॉफ्टस्केप इज 30% एंड 70% इज ऑलमोस्ट हार्डस्केप। कहीं भी लगता नहीं सर, जैसे हम आज आप मेरे टेरेस की बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा वो बहुत ही, आज भी काफी लोग उसकी तारीफ करते हैं। और कहीं भी जैसे हार्डस्केप और सॉफ्टस्केप का एक बहुत ही ग्रेट कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स भी एक हार्डस्केप में आपने पूरी ब्यूटीफुल तरीके से डिस्प्ले किए हुए सर। तो Thanks. डेफिनेटली This is basically a compliment to each other. सर, अगर मैं स्टोन इंडस्ट्री का हूं तो हार्डस्केप की बात करूंगा। एज हार्डस्केप इन्वॉल्व नेचुरल स्टोन, नेचुरल एलिमेंट्स लाइक स्टोन्स। तो हाउ डू यू यूज देम इन लग्जरी डिजाइनिंग? आपके कोई भी प्रोजेक्ट्स में आप स्टोन को किस तरह से यूज करते हैं सर? देखिए, बहुत बेसिक फंडा है पवन जी कि अगर हम लोग कंटेम्प्ररी स्टाइल में जा रहे हैं तो नॉर्मली ग्रेनाइट्स और उसके डिफरेंट फिनिशेस हैं, और नए जो प्रोडक्ट्स आए हैं, जो सैंडस्टोन को आप जो मैट पे यूज करते हैं उस टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं। और हम लोग अगर ट्रेडिशनल फिनिशेस में जाते हैं तो उसमें 100% सैंडस्टोन ही यूज होता है। क्योंकि एक देयर इज ए लाइन है, क्लियर कट लाइन है कि हम किस टाइप का लैंडस्केप कर रहे हैं। और वो जैसे कोई मंदिर है सपोज करो, उसमें हम लोग ने अगर ग्रेनाइट या इस टाइप के हार्ड स्टोन्स लगा दिए तो उसमें आदमी कोई पैदल चल रहा है तो उसके पांव जलेंगे। और सो हम लोग सैंड स्टोन जो कोई फिनिश्ड नहीं है तो कंपेरेटिवली वो कम गर्म होगा। तो इस टाइप से रहता है कि वो कंटेम्प्ररी है, हार्डकोर कंटेम्प्ररी है, तो उसमें इटालियन मार्बल्स भी यूज हो रहे हैं, ग्रेनाइट्स के नंबर ऑफ फिनिशेस यूज हो रहे हैं। और जो बहुत ट्रेडिशनल है उसमें नॉर्मली वी यूज सैंडस्टोन। बट पर्सनल एज ए फ्रॉम द मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, जो हार्डस्केप में जो सैंडस्टोन का जो इम्पैक्ट है दैट इज वंडरफुल, क्योंकि वो जेल करता है लैंडस्केपिंग के साथ। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। अगेन हम लोग अगर होटल इंडस्ट्री में जाएंगे जहां पे आपको एवरीथिंग इज शुड बी स्पीक एंड स्पैन, फंगल इन्फेक्शन वगैरह या फंगस डिपोजिशन या कोई गंदा नहीं होना, तो वी हैव टू डेफिनेटली वी हैव टू गो फॉर ग्रेनाइट, क्योंकि साफ करना इजी होता है, उसमें स्पॉटिंग वगैरह नहीं होती है। दैट इज द वे बेसिकली। ओके सर, आप जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो क्लाइंट की जो पर्सनालिटी होती है, तो उसको कैसे आप थॉट प्रोसेस में लेके आते हैं? हाउ डू यू रिफ्लेक्ट अ क्लाइंट्स पर्सनालिटी बिहाइंड डिजाइनिंग? कोई की फैक्टर्स? आपके पास अलग अलग तरह के क्लाइंट्स आते हैं, हर आदमी की अपनी एक पर्सनालिटी, अपना एक ट्रेड से अपनी एक लाइकिंग है, तो उसको कैसे आप ध्यान में रख के हुए प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं सर? पवन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जब क्लाइंट हमसे मिलता है, जब हम लोग उससे फर्स्ट 20 मिनट्स या 30 मिनट्स या 40 मिनट्स की जब हम लोग उनसे डिस्कशन करते हैं तो वो 90% क्लाइंट्स तो उनकी लाइकिंग खुद ही बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई व्यक्ति अगर पार्टी एनिमल है, कि उसको पार्टी थ्रो करना है, उनको वाइन्स चाहिए, नॉनवेज चाहिए और उसको टेरेस बनाना है, तो हमको मालूम है कि जब इसके लिए हम पार्टीज के लिए हम लोगों को बार एरिया, एक डेडिकेटेडली बार एरिया हम लोगों को यूज करना है, या जूस बार अगर लेडीज आते हैं वो यूज करना है, फिर वाटर बॉडी को इनकॉर्पोरेट करना है, फिर जब बार यूज कर रहा है तो एक बड़ी सीटिंग हम लोगों के पास होना चाहिए, इट इज कवर्ड ऑल्सो, ओपन ऑल्सो। और छोटे छोटे स्पॉट्स भी हम लोगों के पास आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं कि कोई 2 व्यक्ति 10 लोग अगर ड्रिंक कर रहे हैं या
कुछ पार्टी कर रहे हैं तो दो अलग व्यक्ति साथ में बैठे हैं। ऐसी कुछ फैमिली ऐसी है जिनका अलाउ ही नहीं है किसी चीज को, तो हमको उनके हिसाब से प्लान करना पड़ता है। समटाइम्स क्लाइंट आस्क फॉर तंदूर, कि हमको ऊपर तंदूर चाहिए, तो वी क्रिएट स्पेस। एक्चुअली हर व्यक्ति की लाइकिंग के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करके सॉर्ट आउट करके देन वी यूज टू प्लान बेसिकली। और पर्सनैलिटी में जो व्यक्ति का सोच है, मेंटल जो उसकी सोच है कि वो क्या कैटर करना चाह रहा है लाइफ में, उसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, अदरवाइज वी कैन नॉट डू द लैंडस्केप। और कुछ फिर हम लोगों को लगता है कि हमको कुछ एड ऑन करना है, तो कि हम उनको बताते हैं कि आप इसके साथ ऐसा कुछ करके देखिए, तो हम लोग थोड़ा सा हमारा भी इनपुट्स देते हैं बेसिकली क्लाइंट की लाइकिंग काफी इंपॉर्टेंट रहती है, उनकी क्या थॉट प्रोसेस है उसके हिसाब से आप पूरे डिजाइनिंग प्रोसेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं। 70% तो उसकी यूजिबिलिटी के हिसाब से ही गार्डन डिजाइन होना चाहिए, या कुछ भी डिजाइन होना चाहिए, उसका यूजिबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल हमने बहुत अच्छी टेरेस बना दी और हम लोगों ने टेरेस में हम लोगों को स्पेस कम मिल रही, तो हम लोगों ने बाथरूम ओमिट कर दी, तो वो शाम को अगर किसी व्यक्ति को पार्टी करना है या कुछ भी करना है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो हमको एरिया को कट शॉर्ट करके या छोटा एरिया करके वो पर्टिकुलर प्लेस उसकी नीड्स के हिसाब से क्रिएट करनी पड़ेगी। बच्चा अगर छोटा है तो एक छोटा सा हमको गेम जोन टाइप देना पड़ेगा, दैट विल बी अ पोर्टेबल पाइप, बट वी हैव टू गिव अ स्पेस फॉर दैट, जैसे हम लोगों ने आपके टेरेस पे करा हुआ है। फंक्शनलिटी और डिजाइनिंग को हैंड इन हैंड चलना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से पूरा। सबसे पहली चीज सर फंक्शनलिटी ही रहती है, एस्थेटिक्स कम्स लेटर। उसके बाद जो हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो लाइव थ्रेटनिंग ना हो। कितनी बार ऐसा होता है कि पैरापिट वॉल की हाइट हम लोग छोटी रख दी, कभी भी उसमें से बच्चा गिर सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए अगर हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा रेलिंग लगाने का तो हमको लगाना पड़ेगी। तो बेसिकली फंक्शनलिटी और लाइव थ्रेड्स, मतलब जो डिजाइन में भी आजकल कॉर्नर्स हैं, जैसे अगर हम लोगों ने स्पेशल कॉर्नर्स निकाले और कोई स्लिप होता है तो वो कॉर्नर्स इतनी जोर से हर्ट करता है कि बड़ी इंजरी हो सकती है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। सर एक अगला क्वेश्चन है कि जैसे बड़े रेसिडेंशियल प्लॉट जो होते हैं, जैसे 5000 स्क्वायर फीट हो गया या उससे बड़े प्लॉट्स हो गए, वहां पर लैंडस्केप डिजाइन करना थोड़ा कंपैरेटिवली आपके लिए इजी होता है, क्योंकि उनकी डेडिकेटेड गार्डन स्पेस भी होती है। कहीं ना कहीं लोग घर में अपना आधा कंस्ट्रक्शन एरिया रखते हैं तो आधा गार्डन के लिए जगह निकाल के रखते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी है। लेकिन सर अगर मैं बात करूं छोटे प्लॉट, जैसे आजकल हर आदमी को इंटरेस्ट है कि 1500 स्क्वायर फीट का भी प्लॉट है या 1800 है या 2400 है, इस कैटेगरी में भी काफी लोग हैं सर जिनको लैंडस्केप कराने का इंटरेस्ट होता है घर में। तो अमन हम सर किस तरह से उनको ये आइडियाज दे सकते हैं कि आप छोटे प्लॉट में भी एक लैंडस्केपिंग के एरियाज निकाल सकते हैं जहाँ पे आदमी की जो बेसिक लैंडस्केपिंग नीड है वो पूरी हो सके, तो वो कैसे हो सकता है सर? पवन जी, मैं इसमें और मिनिएचर फॉर्म में आ रहा हूँ। हम लोगों ने अभी कल्पतरु करके एक बिल्डिंग है इंदौर में, उसमें हम लोगों ने 4 फ्लैट के अंदर बालकनीज डिजाइन करी है। कुछ बालकनी आर्किटेक्चर इंडिया में उनके फोटोग्राफ्स आए, तो अब हर व्यक्ति ये समझता है कि लैंडस्केपिंग एज इंटेग्रल पार्ट ऑफ देयर फैमिली। तो हम लोग आर्किटेक्ट्स जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो उनसे मिलके हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों को इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे पॉकेट्स दीजिए। फिर हम लोग प्लांट्स की रिसर्च करते हैं कि कौन से 100% सन में, 100% शेड में है, सेमी शेड में है और उसमें कम मेंटेनेंस लगेगा। तो हमारे ऑफिस में देयर आर 3 पीपल्स इन द रिसर्च टीम जो कि सिर्फ यही काम करती है। तो अब तो हम तो एक छोटे छोटी बालकनी, अभी हमने एक्सोटिका में एक बालकनी करी, तो क्लाइंट बोलते हैं कि हम पूरा खाना ही इतने दिन से बालकनी में खा रहे हैं। तो उसमें हम लोग, जैसे अब वो किचन के पास बालकनी है तो हमको मालूम है कि यहाँ पे एक हमको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टेबल देनी है, एक फिर वहां पे कोई जो घर की जो महिला है उसको सब्जी भी काटनी रहती है, कुछ भी करना रहता है, तो हम एक झूला वहां पे प्रोवाइड करते हैं। तो जब वो काम कर रही तो उससे कोई बात करेगा तो ऐसा पोर्टेबल सिस्टम डिजाइन करते हैं कि जब वो झूले पे बैठे तो उनके सामने बैठ के कोई बात कर ले। तो ये छोटी छोटी चीजें यूज करते हैं और हम लोग उसमें वर्टिकली ज्यादा जाते हैं बनिस्पत के हॉरिजॉन्टली। तो हम लोग सीजनल्स की बास्केट को यूज करते हैं, वर्टिकल लैंडस्केपिंग यूज करते हैं। वर्टिकल लैंडस्केपिंग में हम लोग आजकल वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो ओवरऑल इट्स कम्स वेरी गुड। तो वी आर यूजिंग लाइक दिस। मतलब छोटे प्लॉट्स में भी काफी आइडियाज जनरेट करके हम लैंडस्केप कर सकते हैं। Yeah, terrace garden and balcony garden is the future of landscaping. I say कि करीब आज बालकनी की अगर मैं बात करूं तो people can invest up to 25,000 rupees per balcony to 25 lakhs per balcony. तो हम लोगों ने ऐसी भी बालकनी की जिसमें 20-20 लाख रुपए लगे और हम लोगों को कुछ लैंड बालकनी का ऐसा भी लैंडस्केप करा है जो 30-40 हजार में हो गई, एंड बोथ आर इक्वली हैप्पी इन देयर रिस्पेक्ट। ओके, ग्रेट सर। मतलब काफी ऑप्शन निकल गए, अगर बालकनी और टेरेस आ गया तो हमारे पास डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शन निकल के आ जाते हैं। आजकल सेल्फ वाटरिंग प्लांट्स आ गए हैं,
कि अगर आप 8 दिन के लिए घर के बाहर जा रहे हो तो इफ यू हैव पेट तो यू आइदर यू हैव टू कीप एनी बड़ी हाउस और यू हैव टू कीप इन पेट हाउस। लेकिन आजकल सेल्फ वाटरिंग प्लांट्स आ गए, इरिगेशन सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम हो गए हैं जो आप डायरेक्ट आपके मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा डेवलपमेंट किया है कि नाउ डेज टू मेंटेन ए गार्डन इनसाइड द हाउस वेदर यू आर आउट ऑफ द टाउन अप टू 15 days, नॉट इवन ए सिंगल प्लांट इज गोइंग टू बी डाई। बहुत अच्छा सर, बहुत ही ब्यूटीफुल सर। जैसे आपने बात की टेरेस गार्डन की, एक बहुत ही यूनिक ट्रेंड चल रहा है सर टेरेस गार्डन का अभी काफी जगह। जैसे हम लोगों ने भी अपने शोरूम में टेरेस गार्डन बनाया है, या आपके साथ भी मैं जब बात करता हूँ तो काफी जगह मुझे पता लगता रहता है कि टेरेस गार्डन का एक काफी चलन आ गया है, अभी काफी ट्रेंड हो गया है। तो आप क्या फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं जब आप टेरेस गार्डन डिजाइन करते हैं? तो क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स है जो आप कंसिडर करते हैं टेरेस डिजाइनिंग में सर? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पवन जी जो टेरेस डिजाइनिंग में है कि वेदर उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी है कि नहीं उस गार्डन को बियर करने की। नॉर्मली क्या होता है कि कोई व्यक्ति ने मकान बना लिया, फिर बाद में उसको लगता है कि अब मुझको इसके ऊपर टेरेस गार्डन बनाना है, लॉन लगानी है, तो क्या होता है कि वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उतनी है कि नहीं, तो नॉर्मली लोग उसको निग्लेक्ट करते हैं। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज वाटर प्रूफिंग। अगर आपको टेरेस गार्डन बनाना है और अगर आपने प्रॉपर वाटर प्रूफिंग नहीं की है तो इट इज गोइंग टू ए वेरी बिग ब्लंडर। आपके पूरे घर में सीपेजेस वगैरह होंगी। उसके बाद में आपकी उसकी स्ट्रेंथ वाटर प्रूफिंग के बाद फिर आपको उसमें एलिमेंट्स कैरिया वगैरह डालनी है। फिर उसके अंदर आजकल लाइट वेट मटेरियल आ गए। इंस्टेड ऑफ जैसे आपके हम लोगों ने शोरूम में यूज करा, इंस्टेड ऑफ मट्टी हम लोगों ने कोकोपीट के मिक्सचर और वो सारी चीजें यूज की हुई है। लाइट्स भी हम लोगों ने ऐसे इम्पैक्ट दिए हैं कि कम ज्यादा मतलब उसको कंसील लाइट्स को ज्यादा छीलना नहीं पड़े या ज्यादा उसको मतलब जैसे करंट्स लग सकते हैं आजकल। हालांकि डीसी लाइट्स हैं फिर भी करंट लगने की संभावना बहुत ज्यादा है। व्हेन वाटर मीट्स विद द एसी करंट तो तुरंत लगता है। तो डीसी लाइट्स हम लोगों को बेसिकली यूज करना चाहिए और सॉफ्ट मटेरियल यूज करना चाहिए। प्लांट्स में हम लोग कितनी टेरेस गार्डन में ऐसी चीजें करते हैं कि जिसके रूट्स बहुत ज्यादा फैलते हैं, जो आज से 8-10 साल बाद आपके प्लांट्स को करने वाले। तो हम लोग कंस्ट्रक्टेड रूट सिस्टम में उसमें काम करते हैं कि पॉट के अंदर ही हम लोग प्लांट लगाते हैं, वो पॉट ही टेरेस के क्यारी में डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, तो उससे रूट्स जो है बाहर इमर्ज नहीं होती है। प्लस हर 3 साल में आपको एक बार टेरेस गार्डन की देखरेख के लिए उसकी मिट्टी, उसके प्लांट्स, उसको नॉर्मली जो बेसिक है वो आपको तो कल्चरल प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। ओके सर, काफी हमने ये देखा है कि जैसे लैंडस्केप एरियाज हम डिजाइन करते हैं, लोग बनाते भी हैं, उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखना चाहिए, वो एक थोड़ा सा अगर आप गाइड कर सकें। अगर हम लोग टेरेस गार्डन बनाते हैं पवन जी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एटलीस्ट वन ऑफ द मेंबर शुड हैव इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। ओके। बिकॉज अगर आपके केस में आपके टेरेस के केस में आपके घर में किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो आपको हमको फोन करना पड़ता है बार बार। तो एक व्यक्ति को इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। उसके बाद में सेल्फ वाटरिंग सिस्टम डिवाइस अगर हम उसमें लगा देते हैं तो सेल्फ वाटरिंग सिस्टम में हम लोग डिवाइस लगा देते हैं तो पानी देने की आपको जरूरत नहीं है। तो हर फोर्टनाइटली या 10 डेज में आप माली को बुलाएं, वो कटिंग वगैरह करके सफाई करके और स्प्रे वगैरह करके वो चला जाएगा। और रेगुलर बेसिस पे आपको एक अच्छे ट्रेंड माली को बुलाना पड़ेगा जिसमें आपको उसके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि माली आपको प्लांट्स किस हाइट तक चाहिए, कैसा चाहिए, उसकी कैनोपी कैसी चाहिए, वो आपको माली को बताना पड़ता है। तो बेसिकली हम लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ता है। बेसिकली जैसे हम लोग पेट भी पालते हैं तो वन ऑफ द पर्सन ऑफ द हाउस इज लिटिल इन्वॉल्व, भले ही वो 1 घंटा रहे। तो आप अगर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स पर डे अपने टेरेस गार्डन को देते हैं एक मीडियम और साइज के फॉर अबाउट 1000 स्क्वायर फीट, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट आपके लिए मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जरूरी है। और सुंदर तभी लगता है वो जब नए आपने कोई प्लांट्स लगाया उसमें एक की जगह 3 फ्लावर हो रहे हैं, उनका साइज बड़ा है, तो जो आप उसको देख के जो आपको अच्छा लगता है ना, दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ एनी थिंग। पैसे से भी उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। So nice. Yeah. काफी सारे विजिटर्स हैं हमारे, काफी सारे लोग जिन्होंने ज्वाइन किया, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो मे बी वी कैन टेक इट। और कुछ आपकी तरफ से अगर आप गाइडेंस देना चाहें सर इन द मीन टाइम। सर मेरा ऐसा है कि पवन जी की जितनी ज्यादा आप हरियाली रखोगे घर पे उतनी ज्यादा एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। दूसरा, कुछ प्लांट ऐसे हैं, 8-10 स्पीशीज प्लांट्स की ऐसी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते वो पॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने में या कंट्रोल करने में कितना इम्पैक्ट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरिका पाम्स है, सनसीवेरिया है, चिमेडोरिया एलिगेंस है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो हमारे मनी प्लांट्स हैं, बिल्कुल रेयर प्लांट है, मनी प्लांट कभी मरता ही नहीं है,
बट अल्टीमेटली जो उसके अंदर जो हमारे घर में स्मेल है या हमारे यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स है या ऐसी कुछ गैस इवॉल्व हो रही है जो हमारे पेंट से डायरेक्ट एक्सपोजर से आती है, तो वो प्लांट सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो प्लांट्स, जितना ज्यादा प्लांट्स घर पे यूज करोगे उतना ज्यादा आपको लाइवलीनेस दिखेगा। द बेस्ट थिंग फ्रॉम द प्लांट इज दैट कि अगर आपने कोई वॉल पे पेंटिंग लगाई है तो 10 साल तक वो पेंटिंग इट इज गोइंग टू बी रिमेन सेम एज इट इज। पर प्लांट्स हर बार नई पत्ती दे रहा है, हर बार ग्रो कर रहा है, कभी उसकी लेंथ बढ़ रही है, कभी उसकी पत्ती सूख रही है, कभी उसमें पत्ती में नया टेक्सचर आ रहा है। एक ही पत्ती में अगर आप बहुत फाइनली ऑब्जर्व करोगे तो 3-4 कलर हर पत्ती चेंज करती है उसके लाइफ स्पैन में। तो वो देखना ब्यूटीफुल है। प्लस आपके पॉल्यूशन कंट्रोल का बहुत बड़ा फैक्टर। मैं अपने टेरेस पे भी देखता हूँ, जब प्लांट्स हर बार कुछ ना कुछ नया अपना रंग दिखाते हैं, और वो जब उनको हर बार आप जब स्टोन्स के साथ अगर मैं उसको रिलेट करता हूँ हर बार, तो मुझे डेफिनेटली हर बार एक नया एलिमेंट दिखता है उस जगह। तो डेफिनेटली सर एक बहुत ही लाइवली चीज है ये, अगर हम प्लांट के और साथ कनेक्ट हो पाए, नेचर के साथ कनेक्ट हो पाए, तो नथिंग लाइक इट। एक प्लांट भी अगर आपने लाइफ में कोई बड़ा प्लांट कहीं पे आपने प्लांट किया है और अगर उसका 15-20-25 साल की उसकी एज हो गई है, तो आप ये मान के चलिए कि उसका जो ऑक्सीजन जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो मोर देन 1 करोड़ रुपीज है। तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि अभी हम लोगों ने ऑक्सीजन इसमें परचेस करी है, तो आप सबको मालूम है ऑक्सीजन क्या रेट मिलती है और क्या किलो मिलती है। और वो एक प्लांट है और आपको अच्छा लगता है डेफिनेटली दिस प्लांट इज ग्रोन बाय मी। मैंने तो करीब करीब अभी तक 2-3 करोड़ प्लांट्स लगा दिए होंगे सब साइट्स को मिला के। तो मैं आज से 12 या 15 साल पहले कोई प्लांट मैंने लगाया था और वो कहीं मैं उधर से निकल रहा हूँ और जब मुझको मालूम पड़ता है कि ये प्लांट मैंने लगाया, नाउ इट इज ए जिजेंटिक ट्री। तो मेरे बोला आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई खुशी कि मुझे कितना अच्छा लगा। ये डेफिनेटली सर, आपके थ्रू एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम प्लांट्स लगा सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हम नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं अपने घर में, अपने आसपास, तो डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक पॉजिटिविटी को लेके आता है हमारी लाइफ में। राइट राइट। डेफिनेटली ग्रो अलोंग विद द नेचर। यस यस। नहीं, थैंक यू plants सो मच। is the integral. Yeah, no, okay. So थैंक nice. यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच। Thank you for giving me opportunity to talk. Okay. Bye, Pawan. All the best to Stone World and your friends, family. Bye bye. थैंक यू सो मच। Okay. Bye.